Hello students. So we have already gone through the concept of letter writing in the previous video. So let's get started with the questions of it. Question number 1. You participated in a storytelling competition based on a particular theme and won a prize. Your story was so impressive that it got published in the school magazine. Write a letter to your grandfather telling him about your story and the competition. अभी हम लोग को ग्रैंडफादर को एक लेटर ड्राफ्ट करना है, सो इट विल बी इनफॉर्मल काइंड ऑफ लेटर एंड द कंटेंट विल बी हम लोग ने एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जो एक पर्टिकुलर थीम के बेस पे थी और उसमें हम लोग ने प्राइज़ जीता है और हमारी स्टोरी इतनी इम्प्रेसिव थी कि हमारे स्कूल की मैगज़ीन में वो पब्लिश हो गई। उसके रिलेटेड हमको एक लेटर ड्राफ्ट करना है telling our grandfather about the story and the competition. So let's get started with the content. So starting with the sender's address. Then secondly we need to mention issuing date of the letter. Thirdly we are adding the salutation. Salutation will be dear grandfather or dear grandpa. Then body of the letter. How are you? Hope you all are doing well and having a great time. Actually, I wanted to tell you that I won first place in the storytelling competition that was held recently in my school. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। फिर हम होप कर रहे हैं कि यू आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। फिर हम लोग उनको मेनली बता रहे हैं कि एक्चुअली मुझे एक बात बतानी थी आपको कि मैंने एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जो रिसेंटली मेरे स्कूल में ऑर्गेनाइज की गई थी और उसमें मैंने फर्स्ट प्लेस जीता है। इट वॉज indeed a great competition. There were many competitors. You will be glad to know that I have won first prize and my story was so damn impressive that it got published in the school magazine. Then after we are telling द एग्जैक्ट पॉइंट कि हमारा जो कंपटीशन था वो बहुत ही अच्छा था। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट कंपटीशन। देयर वेर मैनी कॉम्पिटिटर्स, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स भी थे, लेकिन फिर भी आपको जानते खुशी होगी ये जानते हुए कि उसके बावजूद मैंने फर्स्ट प्लेस जीता है एंड मेरी स्टोरी इतनी इम्प्रेसिव थी कि स्कूल वालों ने स्कूल मैगज़ीन में पब्लिश कर दी। देन प्रणाम टू यू एंड डियर ग्रैनी, हम लोग प्रणाम कर रहे हैं ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को। दैन सब्सक्रिप्शन योर अफेक्शनेटली एंड एंडिंग विद द कुणाल आर नेम। So question number 2. The park in your neighborhood is being misused by some residents for personal purposes such as arranging ceremonies and parties. As a concerned resident, write a letter to your president of Residents Club highlighting the issues and its negative impact on the life of residents. अभी as we are writing प्रेसिडेंट ऑफ रेजिडेंट क्लब को हम लोग लिख रहे हैं लेटर, तो इट विल बी ऑब्वियसली अ फॉर्मल लेटर एंड द कंटेंट विल बी कि हमारे नेबरहुड में एक पार्क है जो मिसयूज़ किया जा रहा है कुछ रेजिडेंट्स से उनके पर्सनल पर्पसेस के लिए। वो सेरेमनीज एंड पार्टीज़ अरेंज कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ परमिशंस एंड एज अ कंसर्न्ड रेजिडेंट हमको प्रेसिडेंट ऑफ रेजिडेंट क्लब को एक लेटर ड्राफ्ट करना है हाईलाइटिंग द इश्यूज एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द misuse on the life of residents. So let's get started. Starting with the sender's address. Then secondly we are mentioning the issuing date of letter. Thirdly to whom we are sending the letter, uska designation, place of living, etc. we need to mention that thing. Then subject, park being misused for personal purposes. पार्क है वो पर्सनल पर्पसेस के लिए मिसयूज़ किया जा रहा है। बॉडी ऑफ लेटर, इट इज़ विद ग्रेट एंग्विश दैट आई राज मल्होत्रा अ लोकल रेजिडेंट राइट दिस लेटर टू यू अबाउट द पार्क बीइंग मिसयूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि
आई एम टेलिंग विद द ग्रेट मेंटल पेन, एंग्विश मतलब मेंटल पेन. So I am telling with the great mental pain that I am a local resident and as well I am writing a letter to the president of residents club, क्योंकि हमारा जो पार्क है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है कुछ रेजिडेंट्स के थ्रू. It is over like 3 to 4 months that the park near Krishna Heights apartment is being misused by some residents for their personal purposes like arranging ceremonies and parties without taking any kind of permission. तो ये 3 to 4 months से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि कृष्णा हाइट्स अपार्टमेंट के नियर नेबरहुड में जो पार्क है वो बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है कुछ रेजिडेंट्स के थ्रू उनके पर्सनल पर्पसेस के लिए. जैसे वो सेरेमनीज अरेंज कर दे रहे हैं, पार्टीज अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई परमिशन ले ही नहीं रहा है. The park is getting damaged as there is garbage spread all over. As children are facing problems while playing, youngsters and old age people are unable to do yoga and exercise. अभी पार्क डैमेज हो रहा है क्योंकि हर जगह पे गार्बेज मतलब कचरा फैला हुआ है. हर जगह पे छोटे बच्चे हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं खेलने के टाइम पे क्योंकि हर जगह कचरा है तो वो लोग खेल नहीं पाएंगे. यंगस्टर्स एंड ओल्ड एज पीपल जो वहाँ पे योगा और एक्सरसाइज करने जाते थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, वो योगा एंड एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं कॉज ऑफ गार्बेज स्प्रेड ऑल ओवर देयर. द ग्रीनरीनेस इज बीइंग डिटीरियोरेट मतलब टू बिकम वर्स. जो ग्रीनरीनेस है वो तो वर्स्ट सिचुएशन में है. सो नाउ एंडिंग विद द लेटर, हम लोग एंड करेंगे लेटर का. आई होप दैट द ऑथोरिटीज विल अंडरस्टैंड द कंसर्न एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस विदाउट फर्दर डिले. फिर हम लोग लिख रहे हैं कि हम होप कर रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं पार्क के वो हमारा कंसर्न समझेंगे और उनके लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे बिना कोई फर्दर डिले किए. देन वी आर राइटिंग थैंक यू, सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली, नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग लेटर राज मल्होत्रा. देन एनक्लोजर्स में हम लोग फोटोग्राफ्स ऑफ पार्क कंडीशन ऐड कर रहे हैं. ओके, so this is all about question 1 and question 2 of letter writing.